Sure, let's start. So we're on the unit on biological molecules, and we're done with the first two subsections of this chapter. We're done with carbohydrates. We're done with lipids. Aaj ki class mein we'll be just doing questions based on lipids, and tomorrow's class I'll be starting with the third section of this chapter, which is regarding proteins. और proteins का थोड़ा बहुत आपको idea होता है कि amino acids से बनी होती है, but most of the content that we'll do in the subsection on proteins वो आपके लिए नया होएगा, like आपने वो पहले देखा नहीं होता. So let's start with the questions now. मुश्किल नहीं है यार. I'll जितना आपको पार्टिसिपेट करने का मैं रिक्वेस्ट करूं उतना आप कीजिएगा, लाइक ठीक है ना, लाइक मुश्किल सवाल नहीं, आसान सवाल नहीं. यू शुड बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, सम फीचर्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स आर लिस्टेड. तो ये चार फीचर्स दिए हैं ट्राइग्लिसराइड के. नंबर 1, ट्राइग्लिसराइड कैन बी लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. नंबर 2, triglycerides contain a high proportion of carbon hydrogen bonds. Number 3, triglycerides are insoluble in water. And number 4, triglycerides are less dense than water. इनमें कोई करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है, चारों करेक्ट हैं. These are features of triglyceride. अब एग्जाम में पूछ रहे हैं which of these 4 features make triglycerides suitable energy stores. आपने बताना है ये कि इनमें जो 4 फीचर्स दिए हैं इनमें से कौन से ऐसे फीचर्स हैं which are ideal to have in order to enable the triglycerides to serve as good energy stores. तो यहाँ पे जो फीचर्स दिए हैं लाइक उसमें मैं फीचर नंबर 1 दोबारा पढ़ रहा हूँ. कैन बी लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. इसका कोई फायदा नहीं है enabling them to serve as what, as energy stores. जो 2 दिया हुआ है, it contains a high proportion of carbon hydrogen bonds. Obviously ये तो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से they serve as good energy stores. तो 2 होना जरूरी है. क्या होना जरूरी है? 2 होना जरूरी है. अब ये सारे ऑप्शन देखोगे सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें 2 नहीं है, तो वो तुम वैसे ही निकाल दो. अभी ए सी और 1 जो है वो हमने काट दिए, तो तुम ऑप्शन निकाल दो जिसमें 1 दिया हुआ है, दैट इज व्हाट, ऑप्शन ए over here, so you can even eliminate that. अब तुम्हारे पास है 3 which is given as insolubility in water. That is a क्या नाम है वो इंपॉर्टेंट फीचर. वाई? बिकॉज मैंने तुम्हें कहा था ना, जब भी स्टोरेज आए ना मॉलिक्यूल और एग्जाम में पूछे स्टोरेज के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, तो स्टोरेज मॉलिक्यूल होने के लिए ना इट्स इंपॉर्टेंट दैट द मॉलिक्यूल शुड बी इनसॉल्युबल इन वाटर. इट शुड बी व्हाट, वरना स्टोर्स का वरना वो स्टोर के फॉर्म में रह नहीं सकते ना यार, वो बेसिकली बह जाएंगे. समझ में आ गया? लाइक सो दे हैव टू बी व्हाट, insoluble. So therefore point 3 has to be correct as well. तो 2 और 3 correct हो गया. अब C और D अभी भी open है, because हमने 4 देखना होगा. I will have to link कि whether that is an important feature that the triglycerides have in order to enable them to serve as good energy reserves. और 4 दिया हुआ है less dense than water. This is not an important feature as far as what, as far as lipids serving as energy reserves is concerned. So 4 is out, and therefore option D should be your right answer in this case. Next question. The diagram shows the formation of a biological macromolecule. और तुम्हें नजर यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल. कैन ऑफ सी दैट 3 OH groups. So this is a molecule of glycerol, and this over here is what, 3 fatty acids. Can you see that these are 3 fatty acids? ये एक fatty acid है, एक carboxyl group, ये दूसरा carboxyl group, ये तीसरा, तो ये 3 fatty acids आपको नजर आ रहे हैं. Can you see that? जब ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल इन 3 fatty acids के साथ ज्वाइन करेगा ना, तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी? What is the product over here? Triglyceride. And what? How many molecules of water have you eliminated? 3. So there are 3 condensation reactions. Do you see that the examiner has not used the word polymer over here? He has used the word what? Macromolecule. Because remember that triglycerides polymers नहीं होते हैं. Triglycerides क्या होते हैं? Macromolecules होते हैं, because they are not made up of a single type of repeating units like. ये ना, आप इनको macromolecules बोल सकते हैं, but आप इनको क्या नहीं बोल सकते? Polymers नहीं बोल सकते. अपने ज़हन में रखना. Which type of bonds are formed in the macromolecule product? तो बहुत सिंपल है. All 3 of these are what? They are ester bonds. तो इसमें आप आराम से obvious answer मार्क कर सकते हैं, which is option A in this case. Next question. The diagram shows a molecule that is found in cell surface membranes. और जब भी cell surface membrane की बात आए ना, तो याद रखो कौन सा लिपिड कॉमनली होता है cell surface membrane में? phospholipids. कौन से होते हैं? So this is a cartoon diagram of the phospholipid molecule, and it's an acceptable diagram because ये diagrams आप यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में भी, और इसलिए एग्जाम में ये बनी हुई नजर आ रही है आपको. और आपको ये नजर आ रहा है हेड, और ये क्या नजर आ रही है? फैटी एसिड टेल्स नजर आ रहे हैं. हेड इज व्हाट? ऑलवेज हाइड्रोफिलिक. एंड व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? अ फॉस्फेट ग्रुप एंड अ पोलर ग्रुप. यू रिमेंबर दैट? सो इट्स अ हाइड्रोफिलिक हेड. और ये जो आपको दो नजर आ रही है क्या है? हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स हैं. क्या है? हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स. कैन यू टेल मी व्हाई इज देयर अ बेंड इन दिस वन? बिकॉज डबल बॉन्ड के. एंड यू सी दैट उसने बनाया नहीं है, बिकॉज जाहिर सी बात है उसके बारे में वो आपसे मोस्ट लाइकली क्वेश्चन करेगा. लाइक उसने अगर ये बेंड, क्यों देखो यार ये वाली जो होती है ना, जब डबल बॉन्ड होता है तो हो सकता है स्ट्रेट भी हो सकता है बेंड भी हो, बट अगर स्ट्रेट वो दिखाएगा ना, डबल बॉन्ड उसमें डाल देगा ताकि आप देख लें डबल बॉन्ड है. लाइक बेंड जब वो दिखाता है ना, तो इसका मतलब है अक्सर वो डबल बॉन्ड मिस कर देता है. आपको पिक करना होता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से क्या आएगा? बेंड आया होगा. लाइक अब व्हाट इज प्रेजेंट एट एक्स वाई एंड जी. अब गौर से देखो यार, मैं बताता हूँ
योर अप्रोच टू क्वेश्चंस। इट्स इंपॉर्टेंट कि एक तो होता है ना सही आंसर, तो आपको मार्क्स की में भी मिल जाता है ना, हाउ टू गेट टू द सही आंसर ये मार्क्स की में ही लिखा होता है, समझ में आ गया? योर अप्रोच टू अ क्वेश्चन। So this is how you do MCQs in your exams, because time is everything in the MCQ paper. What is everything? Time. आपको time अलग बढ़ा दिया गया, but ऐसे तो हो सकता है difficulty level of questions भी उतना बढ़ जाए, like so you don't really want to waste your time क्या नाम है when doing MCQ question। तो आप पहले क्या करेंगे, आपने ये पूरा मॉलिक्यूल देख लिया, पहले कॉलम पे आप जाएंगे, पहले कॉलम में जो आपको दिया हुआ वो X दिया हुआ है ना, उसकी आइडेंटिटी बोलिए। अब X में ऑप्शन क्या दिए हैं, फॉस्फेट, फॉस्फेट, प्रोटीन, प्रोटीन। आपको पता है X यहाँ पे क्या होएगा, पोलर फॉस्फेट ग्रुप होएगा ना, लाइक सो आप क्या करेंगे, ऑप्शन सी और डी को एलिमिनेट कर देंगे। यू विल नो दैट योर राइट आंसर हैज टू बी व्हाट, इट हैज टू बी ऑप्शन ए या बी में से, किस में से, ऑप्शन ए या बी में से। नाउ यू विल गो टू द सेकंड कॉलम। अब सेकंड कॉलम में आओ, सेकंड कॉलम में अगर तुमने सही चीज आइडेंटिफाई करी ना, तो आंसर तुम्हारा मिल जाएगा, बिकॉज गौर से देखो ए और बी जो है ना, वो सेकंड कॉलम में अलग अलग चीजें दी हुई नजर आ रहा है। अब सेकंड कॉलम में वाई के लिए नजर आ रहा है, वाई में जो सॉ टूथ है वो बिल्कुल सीधा है, नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और सिंगल बॉन्ड आपको किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। मुझे तीसरा कॉलम अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज अगर ये रॉन्ग हो गया है ना, तो ऑप्शन ए आउट हो गया। सीओडी तो मैंने वैसे ही आउट कर दिया था ना, मैंने सीओडी जो है वो पहले आउट कर दिए थे, तो अब मैंने ऑप्शन ए आउट कर दिया, एंड द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन बी इन दिस केस। जस्ट टू मेक श्योर कि भाई ऑप्शन बी सही है, मैं तीसरा कॉलम भी देख लेता हूँ। वो जी फैटी एसिड दिया हुआ है, उसमें बेंड है, एंड दैट मस्ट हैव व्हाट, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड कार्बन चेन। प्लीज रिमेंबर यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों होएगा, बिकॉज आपके पास फैटी एसिड चेन क्या है, यहाँ पे बेंड हुई हुई है, क्या हुई हुई है, बेंड हुई है। इफ देयर इज अ बेंड then that implies what, that there is a double bond, carbon to carbon double bond। कितने हैं that doesn't matter, बस ये है कि कम से कम एक जरूर होगा जिसकी वजह से आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे बेंड नजर आ रहा है। सो प्लीज रिमेंबर आपकी अप्रोच यहाँ पे क्या थी, आपने पहले वाला कॉलम देखा, आपने पहले वाले नीचे पहले कॉलम देख के नीचे वाले जो दो थे ना ऑप्शन, वो वैसे ही निकाल दिए। अब आप सी डी को भूल जाएं, सिर्फ ए बी पे फोकस करें कि इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। फिर आप सेकंड कॉलम पे गए और आपने देखा इस ए और बी जिसको आप देख रहे थे, उसमें से जो बी दिया हुआ है ना, उसमें से ही आपको चीज दिया, ऑप्शन दिया हुआ है, ओप्पो वाला रॉन्ग है, तो बस आप ऑप्शन बी मार्क कर दें। आपको तीसरे टाइम बचाने के लिए आपको तीसरे कॉलम में जाने की भी जरूरत नहीं है। फिर वैसे ही बाद में जब आपको होते ना, लाइक यार टाइम बच जाए आपके पास एंड में, आपको चेक करना हो, आप प्लीज वापस आके रीचेक कर लें एंड चेक द थर्ड कॉलम एज वेल, एंड दैट विल आल्सो बी व्हाट, दैट विल आल्सो बी अ करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फैटी एसिड रेसिड्यूज, रेसिड्यूज का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हाउ मेनी फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स रेसिड्यूज आर नॉर्मली प्रेजेंट इन अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। तो फॉस्फोलिपिड में कितने फैटी एसिड्स होते हैं, दो होते हैं। ट्राइग्लिसराइड में तीन होंगे, फॉस्फोलिपिड में कितने होंगे, दो होंगे, एंड देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ये आपको फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल शो किया हुआ है, पहले गौर से मॉलिक्यूल देख लो यार, इधर देखो गौर से, ये जो आपको नजर आ रहा है ना बीच का जो पार्ट है, ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है, दिस होल थिंग बिलोंग्स टू ग्लिसरॉल, इट बिलोंग्स टू व्हाट, ग्लिसरॉल। अब गौर से देखो यार, जो उसके नीचे आपको ये वाली चीज दी हुई है ना, दिस बिलोंग्स टू वन फैटी एसिड, दिस बिलोंग्स टू अनदर फैटी एसिड, व्हाट डू यू थिंक इज दिस, दिस इज द पोलर फॉस्फेट ग्रुप। बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप और पोलर ग्रुप साथ जो है वो क्या होंगे, फॉस्फोलिपिड है ना। तो फैटी, अब मुझे किस तरह पता चला कि ये फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड है, बिकॉज मुझे सी डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। तो इनके साथ फैटी एसिड की पूरी ये जो कार्बन हाइड्रोजन चेन होती ना, वो जी पे लगी होगी, वाई पे भी कार्बन हाइड्रोजन वाली पूरी चीज होगी ना, वो लगी होगी। एक्स पे क्या लगा होगा, फॉस्फेट, और उसके साथ क्या लगा होगा, पोलर ग्रुप, क्या लगा होगा, पोलर ग्रुप। अब आपसे ये पूछा है व्हाट आर एक्स वाई एंड जी। अब x के ऑप्शन दिए में x ये है, x इज अ, आपको पता है दिस मस्ट कंटेन फॉस्फेट और उसके साथ एक पोलर ग्रुप होगा ना। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, आप ए और बी क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब आपके पास सी एंड डी जो है ना, ये वो हैं जिनको आप आगे पढ़ेंगे। सेकंड कॉलम में सिर्फ सी डी आप देख रहे होंगे। लाइक अब वाई दिया हुआ है यहाँ पे, जो सेकंड वाला कॉलम है विच इज वाई ओवर हियर, वो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं सीओडी में, हाइड्रोकार्बन चेन एंड ग्लिसरॉल। व्हाट इज वाई, or hydrocarbon chain. So if you have chosen that Y has to be hydrocarbon chain, you are now sure, because COD आपके पास रह गया था ना, you are now sure that your right answer is what, option C in this case। अब आप लास्ट वाला भी देख लें, Z में भी वहां क्या दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन चेन दिया हुआ है, एंड दैट इज करेक्ट, बिकॉज यार देखो फैटी एसिड जो होता है ना यार, उसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट होता है उसका सिर्फ सी डबल बॉन्ड हो रह जाता है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना सी डबल बॉन्ड हो, दिस पार्ट दैट यू सी ओवर हियर, दिस इज एन इंडिकेशन कि ये फैटी एसिड का पार्ट होगा।
यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड होगा, दिस इज एन इंडिकेशन ये फैटी एसिड का पार्ट होगा। यहाँ पे ओ है ना, नजर आ रहा है ऊपर की साइड पे देखो, यहाँ ओ है ना इधर, तो ये होगा जो बेसिकली, और ये ऊपर भी बना दिया, एग्जामिनर ने आसान कर दिया। फॉस्फोलिपिड का तुम्हें ये तो याद है ना स्ट्रक्चर जब हमने बनाया था, हमने जो एक फैटी एसिड निकाला था उसकी दूसरी साइड पे बेसिकली वो पोलर और फॉस्फो, उसी से वो कर लो, चीप तरीके से ही कर लो यार कि ये एक्स में जो है वो फॉस्फोरिल हो, उस तरह कर लो अगर आपको कॉमन सेंस नहीं है तो। प्लीज रिमेंबर दीज आर द टू फैटी एसिड्स दैट वी हैव एंड दिस इज बिकॉज आप लोग करते हो ये हरकतें यार, ये एक ऊपर है दो नीचे हैं, तो ये दो फैटी एसिड है वो, तो आपने अगर वो करना है कर लें भाई, मैं आपको रोक थोड़ी सकता हूँ, but that is an incorrect way of solving this. Do you understand that? Correct way is what? You look at the C double bond O's over here, they belong to the fatty acids. तो ये जो नीचे वाला पूरा पार्ट है Z और Y का, वो फैटी एसिड का जो CH वाला पार्ट होता है ना, वो पूरा पार्ट होएगा, और ये जो X होएगा ये फॉस्फेट ग्रुप और क्या होएगा, पोलर ग्रुप होएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum number of condensation reactions that occur when a triglyceride is synthesized? तो पूछ रहे हैं ट्राइग्लिसराइड जब बनती है ना, किससे बनती है, एक ग्लिसरॉल और तीन फैटी एसिड से, जब वो आपस में जुड़ते हैं तो कितने कंडेंसेशन होते हैं, तो दे आर व्हाट, 3 कंडेंसेशन रिएक्शंस बिकॉज़ यू एलिमिनेट 3 molecules of water, so the correct option over here will be what, option C in this case. Next question, what is true about triglycerides? पहला कॉलम हाइड्रोफोबिक, टिक मार्क का मतलब है करेक्ट है, क्रॉस का मतलब है रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, तो पहला कॉलम है हाइड्रोफोबिक, आर ट्राइग्लिसराइड्स हाइड्रोफोबिक, they are purely हाइड्रोफोबिक, इसमें ट्राइग्लिसराइड में कोई हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक पार्ट नहीं होता, सारा का सारा हाइड्रोफोबिक होता है ना। तो अभी देखिए यार, मैं कौन से ऑप्शन में हटा दूंगा, सी एंड डी, डू दिस, गेट दिस स्ट्रेट अवे, योर अप्रोच टू एमसीक्यूज मैटर अ लॉट। जब भी इस तरह कॉलम वाले सवाल आए, जिस कॉलम के बारे में तुम 100% श्योर हो ना, सबसे पहले वो कॉलम देखा करो, और तुम्हें लगे ना जहां पे उस कॉलम के अंदर जो जो रिडंडेंट वाले दिए हुए हैं उनको हटा दिया करो ना यार, उन वाले ऑप्शंस को फिर देखो ही नहीं, सिर्फ जो तुमने शॉर्टलिस्ट की ना सिर्फ उनको देखो, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा ना यार। अभी तो आप एक एक करके देख रहे हो, ऑप्शन ए में ये लिखा है, बी में ये लिखा है, सी में ये लिखा है, डी में ये लिखा है, तो कभी किस्मत अच्छी होगी ए सही आंसर होगा, टाइम बच जाएगा, ज्यादातर टाइम नहीं अच्छी होगी तो या तो सी सही आंसर होगा या डी आंसर होगा, आप टाइम बहुत लगाएंगे ना उसमें यार। सो प्लीज यूज दिस अप्रोच व्हाइल यू सॉल्विंग योर एमसीक्यूज। तो सी एंड डी आपने हटा लिया, यू नो दैट द राइट आंसर हैज टू बी ए और बी। अब आप आ जाएं इनसॉल्युबिलिटी इन अल्कोहल में, आर ट्राइग्लिसराइड्स इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, नो दे आर सॉल्युबल। तो एग्जाम में ये होते हैं ब्रेन टीजर, जब आप नींद पूरी करके नहीं जाते ना, क्या नहीं करके जाते, नींद पूरी, तो दिस इंग्लिश messes up with your brain, insoluble in alcohol, ये तो आप उसमें भी गलत करके आते हैं, उसने जानबूझ के लिखा है insoluble in alcohol, it's a wrong statement, वो जो स्टेटमेंट लिखी है that's a wrong statement, insoluble in, because it is what, soluble in alcohol। तो आप यहाँ पे जो चूज करेंगे वो क्या होगा, क्रॉस होगा, लेकिन भाई ये गलत लिखा हुआ है, वो insoluble नहीं होते, क्या होते हैं, soluble होते हैं, तो ऑप्शन बी will become what, will become your answer। next question, next question, the diagram shows 3 triglycerides X, Y and Z। तो आपको ये 3 ट्राइग्लिसराइड्स नजर आ रहे हैं, अभी पहले गौर से एक एक करके देखना है इनको, ठीक है, एक एक करके देखो, सवाल छोड़ो, अभी पहले एक एक करके देखो। X में देखो नजर आ रहा है ट्राइग्लिसराइड, कैन यू सी दैट, कैन यू सी अप्रिशिएट द एस्टर बॉन्ड, ये देखो ये एक एस्टर बॉन्ड है, नजर आ रहा है, फिर ये एक एस्टर बॉन्ड है, ठीक है, ये एक एस्टर बॉन्ड है, ये एक एस्टर बॉन्ड है, ये एक एस्टर बॉन्ड है, तो आपको ये एस्टर बॉन्ड नजर आ रहे हैं। डू यू सी दिस फैटी एसिड चेन, नजर आ रहा है, सॉर्ट ऑफ अपीयरेंस, तो ये सारे ये स्केटर फॉर्मूला है फैटी एसिड का जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास एक हाइड्रोकार्बन की पूरी चेन है, तुम देखो भाई ये वाली नजर आ रही है, डू यू सी द डबल बॉन्ड है, सीधी बनाई है उसने खुद दिखाया तुम्हें एग्जाम में डबल बॉन्ड, सही है, ये नजर आ रही है बिल्कुल सीधी, एग्जाम ने खुद दिखाया तुम्हें डबल बॉन्ड आई। हाउ मेनी ऑफ दीज आर सैचुरेटेड, हाउ मेनी ऑफ दीज आर अनसैचुरेटेड, पहले वाले में, so there are 2 that are unsaturated and 1 that is what, saturated। are these 3 different from each other or are they identical, all 3 of these are different, can you see that, तीनों फैटी एसिड यहाँ पे डिफरेंट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इनकी आपको लेंथ भी थोड़ी बहुत डिफरेंट नजर आ रही है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी क्या नजर आ रहे हैं, डिफरेंट नजर आ रहे हैं। सेकंड पे आ जाओ, वाई पे, वाई वाला जो ट्राइग्लिसराइड है उसमें भी 3 फैटी एसिड नजर आ रहे हैं, कैन यू सी द 3 एस्टर बॉन्ड्स ओवर हियर, 3 एस्टर बॉन्ड्स। अब गौर से देखो यार एग्जामिनर ने क्या किया है, यहाँ पे पहले वाले जो तुम्हें फैटी एसिड नजर आ रहा है उसमें एग्जामिनर ने डबल बॉन्ड भी दिखा दिया, साथ उसको टेढ़ा भी कर दिया है, दूसरे वाले में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, आपको सीधी नजर आ रही है, तीसरे वाले में डबल बॉन्ड भी है, उसको भी एग्जामिनर ने क्या कर दिया, टेढ़ा करके शो कर दिया। इफ आई वाज टू आस्क यू ये तीनों सेम है या डिफरेंट है, तो व्हाट बी योर आंसर, all 3 of them are different, they are what, different। गौर से देखो यार ये वाली डिफरेंट क्यों है, इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, all 3 of these are different।
यहाँ पे भी तीनों डिफरेंट है, यहाँ पे भी तीनों क्या है, डिफरेंट है। फिर आ जाओ जी में, जी के अंदर तुम्हें नजर आ रहा है सारी की सारी क्या है, सैचुरेटेड, सेम नहीं है, सारी की सारी सैचुरेटेड है। और गौर से देखो इस वाली की जो लेंथ है ना वो ज्यादा है, दिस इज डिफरेंट, ये दोनों जो है ना वो क्या है, आइडेंटिकल है। दिस इज अ डिफरेंट वन बट दीज टू आर व्हाट, आइडेंटिकल फैटी एसिड्स है भैया। अब पूछा है व्हाट इज करेक्ट फॉर दीज ट्राइग्लिसराइड्स, वो पूछा है इन तीन ट्राइग्लिसराइड्स के लिए क्या चीज करेक्ट है। उसने तीन कॉलम्स बनाए हैं, लेट्स गो थ्रू दोस थ्री कॉलम्स। पहला कॉलम है इट कंटेन्स सैचुरेटेड फैटी एसिड, बेसिकली स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भाई आपको इन तीन ट्राइग्लिसराइड्स में से कौन सी ट्राइग्लिसराइड्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स नजर आ रहे हैं, तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें भी नजर आ रहे हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें भी नजर आ रहे हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें भी नजर आ रहे हैं। ये नहीं उसने बोला कि इनमें से कौन सी ट्राइग्लिसराइड है जिसमें सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये लिखा है अंग्रेजी में किसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अपनी ना थोड़ी सी अंग्रेजी यहाँ पे साइंटिफिक जो इंग्लिश लिखी होती है ना उसको समझने की कोशिश किया करो। लाइक एग्जामिनर ने जो कॉलम बनाया है ना उसकी हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, कंटेन्स सैचुरेटेड फैटी एसिड। आप तर्जुमा करेंगे तो उसका तर्जुमा ये होना चाहिए कि सैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें है या नहीं, ऐसे ही लिखा हुआ है ना। लाइक तो इसमें भी है आपके पास, इसमें एक है, इसमें भी एक है और इसमें कितने, तीन है। तो तीनों के अंदर आपके पास क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट है। तो अगर तीनों में सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है तो एक्स वाई एंड जी यहाँ पे भी हो सकता है, एक्स वाई एंड जी यहाँ पे भी हो सकता है। तो ए और बी में से कोई आंसर होएगा, सी और डी आप क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। बट ऑब्वियसली व्हेन यूजिंग दिस एमसीक्यू देयर इज ऑब्वियसली लाइक आपके जहन में ना हमेशा एम्बिग्यूटी रह जाती है कि यार मैं तो समझा जी होगा क्योंकि उसमें सिर्फ सारे सैचुरेटेड। डोंट वरी, जब आप नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे ना तो उससे नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, यू विल गेट टू द राइट आंसर। लेट्स सी हाउ। सेकंड कॉलम पे जाओ और तुम्हें लिखा हुआ है कंटेन्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऐसे ही लिखा है ना, ऐसे ही लिखा है ना, कंटेन्स अनसैचुरेटेड। तो क्या सारे यहाँ अनसैचुरेटेड हैं? अरे सुन तो लो, सुन तो लो यार, क्या यहाँ सारी फैटी एसिड अनसैचुरेटेड है? क्या यहाँ सारी फैटी एसिड अनसैचुरेटेड है? पर तब भी आपने आंसर क्या बोला, एक्स एंड माइनर, क्योंकि उसमें कुछ अनसैचुरेटेड है। तो इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जो पहले वाले कॉलम में ना उसका भी यही मतलब है कि उसके अंदर फैटी एसिड कोई सैचुरेटेड है या नहीं। समझ में आ गई? लाई वो तीनों में आपको कम से कम एक नजर आ रहा है सैचुरेटेड फैटी एसिड। समझ में आ गई? और जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला कॉलम, उसमें आपने मार्क कर लिया कि किसमें अनसैचुरेटेड वाले किसमें, एक्स और वाई में। जी में तो नहीं है ना, आप श्योर हैं कि जी में नहीं है, तो एक्स एंड वाई में से होगा और आपने ये मार्क कर लिया। तो यू नो थर्ड कॉलम पढ़ने की जरूरत नहीं है अब आपको। समझ में आ गई ना? आपका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। पर आप फिर भी थर्ड पढ़ लें तसल्ली के लिए, टाइम बहुत है, फालतू टाइम है। आप देखें थर्ड कॉलम लिखा हुआ है कंटेन्स मोर देन 2 डिफरेंट फैटी एसिड्स। क्या लिखा हुआ है, कंटेन्स मोर देन, तो यहाँ 3 डिफरेंट है, यहाँ 3 डिफरेंट है ना, तो एक्स एंड वाई होगा। यहाँ तो 3 डिफरेंट नहीं है ना, यहाँ 2 सेम है और एक अलग है, तो 2 डिफरेंट है आपके पास। तो एज ही इज आउट एंड एक्स एंड वाई शुड बी देयर इन द थर्ड कॉलम। इससे आप फर्दर श्योर हो जाएंगे ऑप्शन ए इज व्हाट इज द राइट आंसर ओवर हियर। प्लीज अप्रोच टू योर एमसीक्यूज मैटर्स और लॉट, गेट दिस हैंग, वो गेट द हैंग ऑफ हाउ यू अप्रोच दीज एमसीक्यूज। आंसर्स तो लिखे होते हैं मार्क्स के में, अप्रोच थोड़ी लिखी होती है यार। तो आप यू नीड टू बी अ स्मार्ट किड। Like it's equally important to be smart and effective as it is to be a hardworking student. You just don't want to be hardworking and dumb. You understand that? एक बच्चे की कैटेगरी वो भी होती है जो 7-8 घंटे पढ़ते हैं तब भी उनका ग्रेड नहीं आता है, और एक वो भी होती है जो 2 घंटे पढ़ते हैं ग्रेड आ जाता है। तो nobody is to blame over here, ठीक है ना? हार्डवर्क इज नॉट हार्डवर्क, आपको पता है ना, हार्डवर्क सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता, लाइक स्मार्ट हार्डवर्क इज इंपॉर्टेंट। यू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट? हाँ, वेरी गुड। I don't have time to elaborate right now. I don't have time to elaborate. मुझसे क्वेश्चंस बाद में पूछ लो, गिले सिर्फ स्लाइड क्वेश्चन नंबर मार्क कर लो, स्लाइड बाद में पीछे आ जाऊंगा, हम खत्म कर लेंगे जल्दी, डोंट वरी। सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रोड डिस्क्राइब्स अ ट्राइग्लिसराइड। ये सेम क्वेश्चन नहीं है, आपको लग रहा है सेम है, सेम नहीं है, डिफरेंट है इसमें कुछ। पहला वाला कॉलम लिखा हुआ है हाइड्रोफिलिक और फिर लिखा हुआ है इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। अब हाइड्रोफिलिक ट्राइग्लिसराइड नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है। तो आप यहाँ पे अब कौन से ऑप्शन निकाल देंगे, ए और बी निकाल देंगे, सी और डी अब आप आगे लेके जाएंगे लाइक। और फिर आपको लिखा हुआ है इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, तो इट इज नॉट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, इट इज सॉल्युबल इन अल्कोहल। और यहाँ पे आप अगेन क्रॉस मारेंगे एंड देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी व्हाट, विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question. The diagram shows a triglyceride molecule that has been partially hydrolyzed. ये एक ट्राइग्लिसराइड है जिसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुई है।
तो पहले तो तुम डायग्राम देख के ये गेस करोगे अभी पार्शियल क्यों हुई है, तो मतलब कैसे नजर आ रहा है कि पार्शियल हुई है। तो देखो ये क्या है, दिस इज अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। व्हाट इज दिस? अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। और ये उसके साथ एक एस्टर बॉन्ड नजर आ रहा है तुम्हें, ये एक फैटी एसिड लगा हुआ है, नजर आ रहा है? डू यू सी? दूसरा और तीसरा नहीं है, वो तोड़ दिए होंगे ना इन्होंने, जब भी लिखा हुआ है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। समझ में आ गई क्या लिखा हुआ है? partially hydrolyzed triglyceride. So again the diagram shows the triglyceride molecule that has been partially hydrolyzed. What will be the products of the total hydrolysis of the molecule shown? यानी ये जो मॉलिक्यूल आपको शो किया हुआ है, अगर इसको अब हम हाइड्रोलाइज करें तो प्रोडक्ट्स क्या आएंगे? समझ में आ गई? उर्दू में ये तर्जुमा है। क्या प्रोडक्ट्स आएंगे? आप ऑप्शन छोड़ो, क्या आना चाहिए? हैं? वाटर कहाँ से आएगा? तो हाइड्रोलाइज में तो वाटर यूज होता है, बनता थोड़ी है, प्रोडक्ट थोड़ी होती है, यूज होता है। क्या बनेगा? सॉरी बेटा, तीन कहाँ से बनेगी? डायग्राम में एक ही नजर आ रही है, तीन कहाँ से आ जाएंगी? सो एक ही आपके पास होएगा फैटी एसिड, करेक्ट, और एक क्या होएगा? ग्लिसरॉल। बस ये दो चीजें आएंगी, बिकॉज उसने लिखा है ना ऑफ द मॉलिक्यूल शोन, इसकी करनी हाइड्रोलिसिस यार, समझ में आ गई? जो ऊपर डायग्राम में दिया है मॉलिक्यूल, तो इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे यहाँ से ये टूट जाएगा। कहाँ से टूट जाएगा? यहाँ से ये टूट जाएगा, और आपके पास ये वाला जो पूरा पार्ट होगा ये एक फैटी एसिड बन के जो है वो निकलेगा, और ये वाला जो पूरा पार्ट होगा ये ग्लिसरॉल बन के निकल जाएगा। ये दो चीजें आपके पास बन जाएंगी। समझ में आ गई? अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड अ सैचुरेटेड फैटी एसिड मॉलिक्यूल ओनली। इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। व्हाई इज इट रॉन्ग? बिकॉज सैचुरेटेड नहीं है, ये अनसैचुरेटेड है, आपको डबल बॉन्ड यहाँ नजर आ रहे हैं। बी दिया हुआ है मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मॉलिक्यूल, दैट इज करेक्ट, और ऑप्शन बी मार्क कर देंगे, बट फिर भी सी और डी हम फिर भी पढ़ेंगे। सी दिया हुआ है अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलेगा, यहीं आगे पढ़ना छोड़ दें आप। जब हाइड्रोलिसिस होती है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज होता है, बनता नहीं है, आगे नहीं पढ़े आप, टाइम वेस्ट नहीं करें अपना, सी को काट दें आप। डी में अगेन लिखा हुआ है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, आगे नहीं पढ़े आप, समझ में आ गई? अभी काट दें, बिकॉज मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोडक्ट नहीं हो सकता, हाइड्रोलिसिस में मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज होता है। क्या होता है? कंडेंसेशन में प्रोडक्ट होता है। इफ दिस वाज अ कंडेंसेशन रिएक्शन, मैं बना रहा होता ट्राइग्लिसराइड, तब मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता ना, यहाँ थोड़ी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपके पास बन रहा है। ठीक है, इस सवाल को मैं चेंज किस तरह कर सकता था? एग्जाम में आपको मार्क्स में भी दे सकता था, लेकिन वो क्वेश्चन चेंज करना होता तो ये दे सकता था कि दो फैटी एसिड आके जुड़ेंगे, तो आप बताएं आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी। तो अगर दो फैटी एसिड आके जुड़ेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट ट्राइग्लिसराइड बनेगी, और साथ कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होंगे? दो और रिलीज हो जाएंगे। दैट कुड हैव बीन अनदर वे ऑफ गिविंग द सेम क्वेश्चन। ठीक है, वो यहाँ पूछा नहीं है। लेकिन 1000 रुपीज। Which molecules have a structural formula that contains C double bond O bonds? मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 1 fatty acids, 2 glucose, 3 glycerol. So the correct option over here is option A, 1 and 2, because fatty acids के पास क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, उसका सीरियल बॉन्ड होता है। फैटी एसिड्स में एंड में आपके पास ये होता है ना यहाँ सीरियल बॉन्ड O और OH, तो वहाँ सीरियल बॉन्ड आ गया। और ग्लूकोज का अगर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर याद हो, उसमें मैंने स्पेसिफिकली तुम्हें बताया था दैट ग्लूकोज हैज व्हाट? एन एल्डिहाइड ग्रुप, और उस एल्डिहाइड ग्रुप में सीरियल बॉन्ड O होता है। ग्लिसरॉल में कोई सीरियल बॉन्ड O नहीं होता है, ऑल ऑफ दोज आर सिंगल बॉन्ड, कहीं नहीं होता है सीरियल बॉन्ड O ग्लिसरॉल के अंदर। समझ में आ गई? लाइक तो 3 इज आउट। तुम अगर थोड़े से स्मार्ट होते ना यार, थोड़े से भी, और तुम्हें नहीं भी याद रहा तो ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन तुमने याद नहीं किया, बिकॉज यार हमें लगता था नहीं आना चाहिए, हमें लगता था नहीं आना चाहिए, हमने तो सिर्फ नहीं याद किए। तो अगर तुम सिर्फ तुम्हें ज़हन में होता ना कि ग्लिसरॉल में नहीं होता है, तब भी तुम सही आंसर मार्क करते। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई? बिकॉज इफ ग्लिसरॉल इज आउट, 3 is out, and option B, C and D can be what? Eliminated, and there will be only one possible answer over here, which will be what? Option A in this case. Please be smart, like you need to be hardworking and smart in order to get a grade like it. ठीक है ना? तो आप प्लीज अपना, प्लीज यार मैं क्या बोलूँ तुम लोगों यार। What are the features of triglycerides? अब 4 कॉलम दिए हैं ना, चारों पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ में आई? पहले कॉलम पे आओ, पोलर का तो मतलब पता है ना आपको, कि वाटर सॉल्युबल है नहीं। आर ट्राइग्लिसराइड्स वाटर सॉल्युबल? नो, तो आप यहाँ पे क्या पिक करेंगे? क्रॉस। सो आप यहाँ पे क्या पिक करेंगे? क्रॉस। तो ए एंड बी आर व्हाट? आउट। इज दैट इट? अब जो सेकंड वाला कॉलम दिया हुआ है, triglycerides, are triglycerides less dense than water? Of course, because lipids less dense than water होते हैं। तो यहाँ आप क्या पिक करेंगे? चेक मार्क। आगे जाने की जरूरत नहीं है, C is your answer। समझ में आ गई? रही आगे की जरूरत नहीं है आपको,
वैसे अब आपको है कि यहाँ आगे भी तो देखेंगे, अब आप देख लें आपको कौन सा भी एग्जाम हो रहा है, तो आगे लिखा हुआ है हाई एनर्जी वैल्यू देन कार्बोहाइड्रेट्स, ऑफ कोर्स इट हैज हाई एनर्जी वैल्यू, तो आपके पास टिक मार्क आ गया। फोर्थ कॉलम, क्योंकि इसकी अंग्रेजी तो आपको समझ में नहीं आती तो मैं इसलिए पूरा पढ़ रहा हूँ। लोअर, ये पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इससे पहले तुमने सही आंसर मार्क कर लिया था, क्योंकि अंग्रेजी तो आपको आती नहीं है ना। लोअर प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन देन इन कार्बोहाइड्रेट्स, कल मैंने बहुत क्लियरली तुम्हें एक्सप्लिसिटली बताया था दो चीजें why they are good energy reserves, greater number of CH bonds and hence greater number of hydrogen atoms per gram, बताया था ना। अभी क्या है, क्या लिखा है, लोअर प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन देन, लोअर नहीं है, हायर प्रोपोर्शन होती है, समझ आई क्या होती है, हाँ, तो ये गलत है, और ऑप्शन सी में आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, क्रॉस नजर आ रहा है, एंड देयरफॉर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अनसैचुरेटेड लिपिड मॉलिक्यूल वेयर आर डबल बॉन्ड्स लोकेटेड, पहला दिया हुआ है बिटवीन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यहाँ ही डबल बॉन्ड होते हैं, फिर लिखा हुआ है विद इन फैटी एसिड एंड विद इन ग्लिसरॉल, इसमें फैटी एसिड्स के अंदर डबल बॉन्ड हो सकते हैं बट ग्लिसरॉल के अंदर जो है वो, हाँ गो यार, so ये in unsaturated lipid molecules where are double bonds located, option A and B are out because A में गलत क्या है कि between fatty acids and glycerol लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं बनता यार, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के बीच में एस्टर बॉन्ड बनता है, वो सिंगल बॉन्ड बनता है लाइक। फिर यहाँ लिखा हुआ है विद इन फैटी एसिड्स एंड विद इन ग्लिसरॉल, इसमें ये रॉन्ग है, ग्लिसरॉल के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, और फिर लिखा है विद इन फैटी एसिड्स, यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं जो कि कार्बन टू कार्बन के होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं, एंड देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी व्हाट, विल बी योर राइट आंसर। डी इज वैसी रॉन्ग बिकॉज ग्लिसरॉल के अंदर कोई डबल बॉन्ड एग्जिस्टेंट ही नहीं होता लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, वी हैव टू डू टू क्वेश्चंस फ्रॉम थ्योरी पार्ट, एक ये और एक नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, आपकी पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होगी, जब मैं बोलूंगा तब आप आंसर दीजिएगा। Figure 5.1 shows a diagram of the molecular structures of tristerin, which is a triglyceride, and a phosphatidyl choline molecule, which is a phospholipid. ये ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइस्टेरिन, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोटाइडल कोलिन। पहले तो आप मेक सेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, आपने कोर्स में ये पढ़ा है कि एक ट्राइग्लिसराइड के अंदर, जो कि इसका एक स्पेसिफिक टाइप ट्राइग्लिसराइड का दिया हुआ है, उसके अंदर एक ग्लिसरॉल होता है और तीन क्या होते हैं, फैटी एसिड्स। पहले आप स्ट्रक्चर में वो ढूंढें, ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है ये किसका है, ग्लिसरॉल। डू यू सी दैट द ओज ओवर हियर, वो मैंने बेसिकली ग्लिसरॉल की तरफ किए हैं, बिकॉज ग्लिसरॉल का OH में से H जाता है ना, तो O रह जाता है, तो ये ग्लिसरॉल का पार्ट हो गया। जो आपको नीचे नजर आ रहे हैं ये क्या है, तीन फैटी एसिड्स हैं, ये क्या है, तीन फैटी एसिड्स, और आप देख सकते हैं तीनों की तीनों सैचुरेटेड हैं और तीनों की तीनों क्या है, आइडेंटिकल हैं। कैन यू सी दैट, ऑल ऑफ देम लेंथ भी सेम है, डबल बॉन्ड भी आपको नजर नहीं आ रहे, कोई डबल सिंगल बॉन्ड का भी कोई चक्कर नहीं है, ये बिल्कुल सेम है। तो ये हो गया ट्राइग्लिसराइड, मेक सेंस ऑफ द स्ट्रक्चर ना, जो आपने पढ़ा हुआ है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, तीन फैटी एसिड होते हैं, पहले आप देखिए ना कहाँ है ये, मार्क कर लें आप बेशक, 1 2 3 आपको लिखना है तो लिखने के लिए। फिर आ जाएं आप फॉस्फोलिपिड में। फॉस्फोलिपिड में आपको पता है दो फैटी एसिड्स होते हैं और क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और साथ उसके एक पोलर ग्रुप लगा होता है। अभी गौर से देखो, पहले मैं मार्क करूंगा ग्लिसरॉल, सो दैट यू कैन सी कि ये किससे कनेक्टेड है, ये ग्लिसरॉल का पार्ट है, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ वर्ड ऑफ ग्लिसरॉल। अभी गौर से देखो, ये नजर आ रहा है एक फैटी एसिड, दिस इज वन फैटी एसिड हियर, this over here is another fatty acid. Can you see the two fatty acids here? Are they identical, non-identical? They are non-identical. अभी तुम देख रहे हो यहाँ कुछ नहीं है, ऊपर चीजें नजर आ रही हैं, ये वो है फॉस्फेट ग्रुप और पोलर ग्रुप, ऐसे ही होता है ना लाइक। अभी आप गौर से देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये फॉस्फेट का पार्ट है, किसका पार्ट है, फॉस्फेट का। कैन यू सी दैट, नजर आ रहा है PO4 लिखा हुआ, नजर आ रहा है आपको, तो ये केमिस्ट्री वाला ही फॉस्फेट है। और उसके ऊपर आप चेक करें, आपको नजर आएगा एक और शिट, नजर आ रही है आपको, ये नजर आ रहा है, हमने इसको लिखा था पोलर ग्रुप, ये जो लिखी ना यहाँ पे, ये एक एग्जाम्पल है पोलर ग्रुप की, और भी डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए फॉस्फोलिपिड्स के भी टाइप होते हैं। फॉस्फोटाइडल कोलिन एक टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड है, स्पेसिफिक नाम है एक फॉस्फोलिपिड का, जैसे यहाँ पे ट्राइस्टेरिन एक स्पेसिफिक नाम है ना ट्राइग्लिसराइड का, इस तरह ये फॉस्फोटाइडल कोलिन एक स्पेसिफिक फॉस्फोलिपिड का नाम है। इसमें जो पोलर ग्रुप होता है वो कोलिन होता है, ये कोलिन है, एक्चुअली ये कहीं लिखा नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये कोलिन है, इस कोलिन की वजह से इसको फॉस्फोटाइडल कोलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्फोटाइड। Can anybody tell me by looking at the structure of this group, जो आपको डायग्राम पे नजर आ रहा है, why is this polar? केमिस्ट्री अभी सॉरी यार, केमिस्ट्री में कर चुके हो तुम ये पोलैरिटी सोलैरिटी अभी, अच्छा मैं छोड़ दो, सॉरी, अनफेयर क्वेश्चन। तो बेसिकली आपको नजर आ रहा है नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
नजर आ रहे हैं, यहाँ पे फॉस्फेट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज नजर आ रहे हैं, लाइक नजर आ रहे हैं, इसलिए ये सॉल्युबल ग्रुप्स हैं। क्या है ये? सॉल्युबल ग्रुप्स हैं, पानी में डिसॉल्व कर जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। क्या है ये? हाइड्रोफिलिक। तो आपने पूरे मॉलिक्यूल के, दोनों मॉलिक्यूल्स के एनालिसिस कर लिए। क्या कर लिए? एनालिसिस कर लिया। अब आपको पता है भाई फैटी एसिड कहाँ है, ग्लिसरॉल कहाँ है। अब सवाल देखना। Part A. Table 5.1 shows a structural difference between the two molecules shown in figure 5.1. और वो स्ट्रक्चर डिफरेंस ये दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द फैटी एसिड चेन्स, ट्राइस्टेरिन में सबकी लेंथ सेम है, और जो फॉस्फोराइलिकोलिन है उसमें डिफरेंट लेंथ है। ठीक है ना, उसने एक डिफरेंस आपके लिए खुद लिख दिया है। अब पूछा है कंप्लीट टेबल 5.1 with two further structural differences other than in the numbers of different types of atoms। इसकी अंग्रेजी का मतलब ये है कि जब आप चीपो लेवल पे आते हैं ना यार, और बोलते हैं डिफरेंसेस लिखो, तो आपका सबसे पहला डिफरेंस होता है एलिमेंट्स प्रेजेंट जिसमें आप लिखते हैं ट्राइस्टेरियम के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन है। तो उसने बोल दिया ये डिफरेंस नहीं देंगे आप, इसके अलावा कोई दो डिफरेंसेस देंगे। तो आसान चीज़ें पहले सोचा करो। सबसे आसान चीज़ तुम यहाँ सोच सकते हो वो ये है कि इसके पास कितनी है, 3 फैटी एसिड्स हैं, और इसके पास कितने हैं, 2 फैटी एसिड्स हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डिफरेंस विच विल बी ऑन द नंबर ऑफ फैटी एसिड्स, नंबर ऑफ फैटी एसिड चेन्स। और वो डिफरेंस क्या हो जाएगा कि ट्राइस्टेरिन में 3 फैटी एसिड चेन्स हैं, और फॉस्फोटाइलकोलिन में 2 फैटी एसिड चेन्स हैं। आसान चीज़ें पहले सोचा करो। सेकेंड डिफरेंस तो बहुत ऑब्वियस डिफरेंस है, वो हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द पोलर ग्रुप या प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। तो आप इनमें से कोई एक पिक कर लें कि वो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट और नॉट, प्रेजेंस ऑफ या एब्सेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो आप लिखेंगे या पोलर ग्रुप, तो मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंस ऑफ पोलर ग्रुप। और यहाँ ट्राइस्टेरिन में आप लिखेंगे पोलर ग्रुप इज एब्सेंट, और यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट। ठीक है, और सिर्फ ये नहीं है, देयर आर अदर डिफरेंसेस दैट यू कैन पिक ओवर हियर कि फॉर एग्जांपल ट्राइस्टेरिन में 3 एस्टर बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ पे आपको कितने नजर आ रहे हैं, 2 एस्टर बॉन्ड नजर आ रहे हैं। लाइक आपके पास ट्राइस्टेरिन में फॉस्फेट, वो ट्राइस्टेरिन के अंदर फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, जो यहाँ पे फॉस्फाइलकोलिन है उसमें आपको फॉस्फेट ग्रुप नजर आ रहा है। लाइक जो आपके पास ट्राइस्टेरिन है उसमें सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, फॉस्फोटाइलकोलिन में आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी नजर आ रहे हैं। लाइक सो देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस दैट यू कैन गिव ओवर हियर। जस्ट पिक अप 2 मोर फीचर यहाँ पे लिखो, और उनके जो फीचर के बेसिस में डिफरेंस है वो यहाँ पे कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर 2.1 shows the reaction to form triglycerides। और ये आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल है, ये ग्लिसरॉल। 3 OH नजर आ रहे हैं ना, ग्लिसरॉल है, बस समझ में आ गई। और ये 3 क्या है आपके पास, फैटी एसिड्स हैं। तो ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल हो गया, बी यहाँ पे क्या है, फैटी एसिड जो लेबल हुआ है। जब इन 3 फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ने कॉम्बिनेशन किया थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शंस, तो आपके पास 3 क्या बन गए, एस्टर बॉन्ड बन गए। और ये जो पूरा मॉलिक्यूल है इसको अब आप क्या बोलेंगे, ट्राइग्लिसराइड। एंड दिस ओवर हियर इज व्हाट, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और ये निकले कहां से हैं, थ्रू 3 कंडेंसेशन रिएक्शंस। 3 एस्टर बॉन्ड बने ना, हर एस्टर बॉन्ड बनने में एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बेसिकली एलिमिनेट होता है। पार्ट ए, विद रेफरेंस टू फिगर 2.1 नेम द मॉलिक्यूल्स ए एंड बी। तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी ग्लिसरॉल, और बी जो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ फैटी एसिड, दैट विल बी अ फैटी एसिड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बी, पार्ट 2, स्टेट द नेम ऑफ द रिएक्शन शोन। तो कौन सा रिएक्शन है, condensation reaction। This over here is what, that is the condensation reaction. Part B, animals and plants store triglycerides as energy reserves. Explain the advantages of storing triglycerides as energy reserves rather than carbohydrates such as starch। तो एनर्जी रिजर्व स्टोर करने का फ़ायदा क्या होता है लिपिड्स को, rather than storing carbohydrates such as starch, कि नंबर 1 इनके पास ज़्यादा क्या होते हैं, CH बॉन्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से इनकी क्या ज़्यादा होती है, एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होती है, एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है। एंड यू गेट योर 2 मार्क्स। तो यू राइट दैट दे हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ, they will have what, a greater number of CH bonds, and hence a higher energy value, that's why they are better to be stored as what, as energy, क्या नाम है, reserves। ठीक है, so we'll stop here and we'll continue from here in the coming class।